Congrats for getting engaged. Tell me one thing, why did you keep मेहंदी? चूड़िया क्यों पहनी है? Congratulations for engagement. Anyone observed the ring in your finger? शादी फिक्स हो गई. सबसे बड़ा हाइस था जब मेरे फ्रेंड्स लोग ने मुझे मैसेज करके पूछा भाई सच्ची तेरी शादी हो गई है क्या? बाकी कर लिया क्या? What's up guys, welcome back to my daily vlogs. Today I'm gonna cover all the questions that you have asked on my YouTube community का post. तो मैंने I think एक हफ्ते पहले बोला था that I'm gonna do a Q&A video. I think मेरे चैनल पे मैंने सिर्फ 2 या 3 Q&A videos किया हुआ है and it's been like a really long time. Let's do a Q&A. पहला question है Gossip Girl. आप जब सोलो राइड पर जाते हो तो आपको डर नहीं लगता है? एज अ गर्ल आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दी. अब सारी गर्ल्स आपकी जैसे ब्रेव हो फ्रॉम असम. डर लगता है, डर एक्चुअली बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा से भी एक्सट्रीम वाला ज़्यादा लगता है. मतलब व्हेन आई सी माई वीडियोज़ नाउ तो मैं सोचती हूँ इज़ दिस मी, क्या ये करना ज़रूरी था? अगर ऐसे हो जाता तो क्या होता? एंड देन आई गेट गूस बम्स एंड फिर मैं वो उसमें चले जाती हूँ करके यार ये तो ज़्यादा रिस्क हो गया, ये नहीं करना चाहिए था. अगर ये टाइम पे कुछ चीज़ गलत हो जाती तो कैसे होता? मेरा जो पैशन है टूवर्ड्स ट्रैवलिंग दैट इज़ मोर डोमिनेंट देन द डर दैट आई हैव. बट डरना ज़रूरी है बिकॉज अगर डर नहीं है तो यू माइट लूज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. डेफिनेटली बीइंग अ गर्ल डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए. आई वोंट से इट इज़ सेफ ट्रैवलिंग सोलो बिकॉज रिसेंटली आई फेस्ड a lot of problem. अगर आप लोग मेरा vlog देख रहे हो तो आप लोग को पता चलेगा. So in short मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है. Next question, MD Danish Kwaman, according to you best place one should visit once in their lifetime in India? Yeah, India is so beautiful. There are so many places that you must visit. I think लाइफ में एक बार सबको इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक प्लेस कवर करना चाहिए. सो एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी एंड हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. बट वन प्लेस लाइक माई वेरी फेवरेट, अगर आप लोग बोलोगे वेर आई वांट टू गो एंड स्टे एंड बस जाओ वहाँ पर, वुड बी माउंटेन्स. शायद लेह लद्दाख होगा बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी ब्यूटिफुल सिटी. वंस इन अ लाइफ टाइम जाने का मन है उधर. Okay, so our next question is from Pravinkar. Being a successful individual creator, does collaborations with fellow YouTubers affect you? Good luck, mission 1 million. Positive way, definitely yes. One is you share your subscribers. Second is you share your knowledge. Third is you get more creative. Fourth is you get pushy towards creating content. And mission 1 million. When I'm waiting kab 1 million hoga. Next question is from Shubham. Where do you see yourself in next 5 years? What major things have you planned for the future of you and your family? Yeah, next 5 years plan तो ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा किया था but now सब कुछ ऐसे टाइट फिश हो गया है. You actually cannot plan out things and do it. At least मुझे ऐसे लगता है कि हम जो प्लान करते हैं वो चीज़ होता नहीं है and मेरे साथ तो डेफिनेटली नहीं होता है. Let it be right, let it be. और तो प्लान तो मैंने नहीं किया है बट हाँ आई हैव फ्यू गोल्स इन माई नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. इज दैट आई वांट टू बिल्ड अ हाउस मुंबई में विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, विच इज़ वेरी टफ, विच इज़ next to impossible but not impossible. So I have to work really hard towards it. Next 5 years I have my 5 YouTube channels in different categories because we are versatile. Maybe in next 5 years I want my own team. अभी कैसे, अभी अपन one man नहीं, अभी अपन one woman army है. 1 super bike, 1 big 7-seater car. So India का almost all the parts I have covered. International में I have been only to Dubai. अभी मुझे काफ़ी सारे है countries in my list where I want to travel. I hope fingers crossed वो हो जाए. Next question is from Bubble Gogoy. If you are in a showroom of adventure bikes and you are told to take any bike, which one would you take? So I think my current favorite is Tiger 900 GT. You all guys knew that. So I would go and pick that bike up. Black color to be precise. Well, okay, next question is from Rip Jyoti Pegu. While you are riding solo in that moment, what do you think about ghost? Okay, जब पहाड़ों में चलाते हैं एंड हाईवे पे तो इतना नहीं लगता है भूत का डर, बट पहाड़ों पे आफ्टर आई थिंक 6:30 सनडाउन हो जाता है 6 बजे कोई, एंड वो टाइम के बाद चलाना तुम लोग को ऐसे लगता है करके
साइड में कोई है, एक शैडो टाइप लगता है दैट यू नो समबडी इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग विथ यू, एंड वो ऑटोमेटिक तुम्हारी थॉट्स क्रिएट होते हैं कि तुम्हारे साथ पीछे कोई बैठा है. एट टाइम्स आई गेट सो स्केयर इवन टू सी इन माई रेयर व्यू मिरर. मुझे ऐसा लगता है कभी मैं मिरर में देख ली और मेरे बाइक के पीछे कोई बैठा है या साइड में कोई भाग रहा है या साइड में कोई चल रहा है, तो आई थिंक आई वुड बी एबल टू हैंडल इट. ऐसे काफ़ी टाइम इल्यूजन क्रिएट हुआ है जब पेड़ रहते हैं एंड पेड़ का शैडो परछाई गिरती है ऑन द वे. ऐसा लगता है शायद कोई खड़ा है, कहीं पेड़ का स्टेम दिखाई देता है या स्केयर को दिखाई देता है, तो यू फील लाइक ओ यहाँ पर शायद कोई खड़ा है. एंड मैं चलाते रहते ऐसा लगता है इट इज़ कमिंग क्लोज टू यू. सो बट ऐसे कुछ होता नहीं है, शायद होता भी होगा, पता नहीं. बट जितना तुम्हें उसके बारे में सोचते हो मेंटली, उतना यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट इमेज, एंड वो इमेज फिर तुम लोगों को एक्चुअली दिखाई देती है. सो हाँ, एंड ये मेरे साथ बहुत होता है, especially when I travel alone at night. Aman Shukla, being a professional travel blogger, have you ever felt like there is a saturation point in your life where you have felt if it is a time now to change and do something else? I hope you understand my point, Vishaka ji, that such things do happen at some point with almost everyone. Have you experienced anything as such, madam? ये point मेरे साथ हर महीने आ रहा है अभी, और I would say हर 10 दिन में आ रहा है सैचुरेशन पॉइंट वेयर आई थिंक दैट अभी बस हो गया, अभी बहुत बाइक चला लिया मैंने. अभी इवन आई वॉन्ट टू जस्ट रेस्ट, सिट एंड ईट. समटाइम्स आई फील दैट पहाड़ों में बस जाओ एंड नेवर कम बैक. But when you have that responsibility on your shoulders, that is the only thing which actually gets you back from the saturation point. And when things doesn't go as per you have planned, that is the breakdown. And recently, I think from past 6 months, ये ब्रेकडाउन मेरे साथ ऑलमोस्ट एवरी डे हो रहा है. जब भी मैं उठती हूँ बेड पे से, इससे इधर गोला टाइप आ जाता है, पेट में आई डोंट नो कुछ होता है. ऐसे लगता है कि आई जस्ट वांट टू सर्वाइव द डे आउट. आई कांट मोटिव व्लॉग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट थॉट कीप्स हंटिंग मी अ लॉट. आई जस्ट डोंट वांट टू सर्वाइव, आई वांट टू लिव, बिकॉज टू मच ऑफ सर्वाइवल आई हैव डन. नाउ आई रियली वांट टू लिव. Next question is from Karan Agarwal. What camera you use for vlogging and which video editor do you use for editing? Okay, the camera that I'm using now is Sony Alpha 7C. For editing my videos, I use Adobe Premiere Pro. And my last question, final question, जो ऐसे भंडार आ गया मेरे पास, ठीक है. एनी फ्यूचर प्लान? आई हर्ड यू गॉट एंगेज लास्ट मंथ, कंग्रेचुलेशंस. सो व्हेन आर यू गोइंग टू रिलीज योर एंगेजमेंट पिक्स एंड वीडियोस, एंड मैरिज का क्या सीन है? कोविड के बाद करेगी. आई नो इट्स अ बिट पर्सनल बट टेक योर टाइम. बट क्या करूँ, आपसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ. कट्टर स्क्वाड RJB. फर्स्टली बैंगल्स एंड मेहंदी इसलिए थी मेरे हाथ पे, और है मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी. शादी में एक रस्म होता है जहाँ पर सारी फीमेल जितने भी होती है वहाँ पर उनको बैंगल्स पहनाया जाता है. एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गो. 30 to 40 लेडीज वेयरिंग बैंगल्स, सबसे लास्ट नंबर मेरा था. एंड सिर्फ ये ही बैंगल्स बाकी थी, वो भी मेरी साइज की नहीं थी. एंड वो शगुन होता है, इसीलिए इसको मेरे हाथ में कैसे वैसे वो लोग ने डाल दिया. देन ये भी हाथ में पहना था. जब ये हाथ में पहनने के बाद ही आई, सो माई लेफ्ट हैंड इज स्मॉलर देन माई राइट हैंड. तो यहाँ पर तो एंटर कर ही नहीं रहा था, एंड जितने भी बैंगल्स आ रहे थे टूटते गए थे. तो इसमें मैंने नहीं पहना, इट वॉज ओनली वन हैंड. एंड शादी का माहौल है तो ऑब्वियसली मेहंदी लगेगी. जब मैं उसकी शादी से रिटर्न घर पे आई, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रिमूव दीज बैंगल्स, वो बैंगल्स निकली नहीं है. इट्स बीन नाउ 15 to 20 days मेरे दोस्त की शादी होकर, एंड ये निकल की मतलब हो ही नहीं रही है. इसको मेरी मॉम ने, मेरी नानी ने, मेरे भाई ने, काफ़ी लोग ने ट्राई किया निकालने का, बट निकल नहीं रही है. वे टू रिमूव दिस, इसको तोड़ना पड़ेगा. एंड आई एम रियली स्कैर्ड. एंड ऐसे बोलते कि कांच तोड़ते नहीं है, अपशगुन होता है टाइप्स. एंड अभी आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट, कि अपशगुन वाला जितना भी कहानी है. आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क नाउ. बहुत रिस्क ले लिया लाइफ में, तो इसको मैंने ऐसे ही पहन के रखा है. प्लस माई ब्रदर रियली लाइक्स इट. वो बोलता है कि अच्छी लगती है बैंगल्स. हाँ, घर में बांगड़ी की आवाज़ आ रही है तो अच्छा लगे. तो एज इफ नाउ मैंने रखा है. दिस इज नॉट डिस्टर्बिंग मी ऑल्सो. एंड थोड़े हाथ ऐसे सुंदर एंड लड़की टाइप्स भी लगते हैं. सो गाइज, राधिका विशाखा इज़ नॉट मैरिड. अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है फिलहाल. एंड हाँ, जब इसको मैं तोड़ूंगी तब एक ब्लॉग बनाऊंगी कि देखो ऑफिशियली तोड़ रही हूँ. सो आज का Q&A यही खत्म होता है गाइस. एज ऑलवेज दिस इज राधिका विशाखा साइनिंग अप, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट. आई एम गोना सी यू इन अनदर व्लॉग. पसंद आता लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट और योर फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम द व्लॉग, and share it across. If you have any other questions that you want me to cover up, shoot it down in the comment section below. Keep coming, give and talk, more part to you. Safe kid.